Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Shahid Raza, Assistant Professor, University of Education, Lahore. Thank you so much to join my class. My dear students, as you know that we are discussing about the course Introduction to Guidance and Counseling. And you know this is a course of B.Ed Honors and the course code is EDUC 3142. So we were discussing about different services of guidance in our previous lectures, and we discussed orientation service, placement service and follow-up service. So today we are going to explain and discuss in detail about another important service of guidance, which is testing service. How a counselor and teacher can use this service to benefit their students, and what is the correct procedures to implement and use it. So there are 7 services of guidance in your course outline. There is orientation service, testing service, educational and occupational service, counseling services, placement services, follow-up services, and research and evaluation services. As you know that we have already discussed 3 services of guidance, in which we discussed orientation service in detail. Also we shared and explained the concept of placement service, and the third one we explained in detail, and that was follow-up service. So today we are going to discuss in detail about testing service of guidance, what actually this testing service is, and what is the need of this testing service, and why it is important to understand for students as well as for teachers, because teacher as counselor needs to understand and to get proper information related to this testing service, so that he may be able to apply it properly and appropriately in his classroom settings, in school, college or university or any institution where he is performing his duties. So what is testing service? This service helps the student assess and understand abilities, capacities, interests, personality and pressing concerns. ये जो टेस्टिंग सर्विस है, ये एक्चुअली किसी भी स्टूडेंट के हवाले से उसके अंदर जो एबिलिटीज़ हैं, जो वो सलाहियतें रखता है, जो कैपेसिटीज़ हैं उसके पास, जो हिडन कैपेबिलिटीज़ हैं, उसकी इंटरेस्ट है, उसकी पर्सनैलिटी के हवाले से, और जितनी भी उसकी डिफरेंट कंसर्न्स हैं, उनको अंडरस्टैंड करने के हवाले से और उसको मालूम करने के हवाले से ये टेस्टिंग सर्विस को इस्तेमाल किया जाता है. और ये बहुत ही ज़रूरी है एक टीचर स्टूडेंट्स की एबिलिटीज़ को चेक करने के लिए, व्हाट सॉर्ट ऑफ कैपेबिलिटीज़ एंड कैपेसिटी ही हैज़, व्हाट सॉर्ट ऑफ इंटरेस्ट ही हैज़, एंड टू नो अबाउट द पर्सनैलिटी ऑफ द स्टूडेंट एंड अदर डिफरेंट कंसर्न्स ऑफ different students. So the teacher may be able to understand the abilities and all these interest, personality and different concerns of students by using this testing service. So it's very important for teachers to understand and to keep in mind and to apply it. So it is also a useful tool for the counselors as basis for guidance and counseling, and helps diagnose behavioral and emotional problems that affect school performance. और ये बहुत ही यूज़फुल टूल है काउंसलर्स के लिए कि वो प्रॉपर गाइडेंस अगर प्रोवाइड करना चाहते हैं और प्रॉपर काउंसलिंग देना चाहते हैं अपने स्टूडेंट्स को, अपने क्लाइंट्स को, और डायग्नोज करना चाह रहे हैं उनके डिफरेंट प्रॉब्लम्स, एंड दोज प्रॉब्लम्स में भी बिहेवियरल प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स. एक बच्चा इमोशनल तौर पे किस तरीके से बिहेव करता है और उसका इमोशनल क्वेश्चन क्या है, कितना इमोशनल है वो, और बिहेवियर उसका क्या है, उसका ओवर्ट बिहेवियर, उसका कोवर्ट बिहेवियर. तो इसके हवाले से वो मालूम करना चाहता है और प्रॉपर डायग्नोज करना चाहता है, और वो रीज़न तलाश करना चाहता है कि जो उसके इस बिहेवियर और इस इमोशनल इश्यूज़ और कंसर्न्स के हवाले से हैं. तो देन ही कैन यूज़ दिस टेस्टिंग सर्विस, and this service can provide better results to teachers for understanding the students properly. So every year students are given various psychological tests and are interpreted by their respective guidance counselors. और आप जानते हैं कि हर साल डिफरेंट टेस्ट दिए जाते हैं जिसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट भी शामिल हैं,
एंड देयर आर वेरियस अदर टेस्ट जिनकी वजह से एक टीचर एज ए काउंसलर और एज ए टीचर बेहतरीन तरीके से उन स्टूडेंट्स के बारे में मालूमात हासिल कर सकता है और उनकी कंसर्न्स को मालूम कर सकता है, उनके एबिलिटीज़ क्या हैं, उनकी इंटरेस्ट क्या है, उनका मोटिवेशन लेवल क्या है। तो इन तमाम पॉइंट्स के बारे में अगर वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहता है, और डेफिनेटली ये इन्फॉर्मेशन एक टीचर को चाहिए होती है ताकि वो अंडरस्टैंड कर पाए अपने स्टूडेंट्स को और उसके मुताबिक उनको उनके प्रॉब्लम्स, उनके कंसर्न से रिलेटेड प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड की जाए। काउंसलिंग सेशन अगर ज़रूरी है तो प्रॉपर काउंसलिंग उनको प्रोवाइड की जाए। तो इसलिए टेस्टिंग सर्विस बहुत ही ज़रूरी है। So these services cover the administration, scoring, interpreting and evaluating results of selected test. तो इस टेस्टिंग सर्विस में एक्चुअली क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन है टेस्ट की, उसकी स्कोरिंग कैसे करनी है, उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है, और फाइनली उसको इवेलुएट कैसे करना है, जो रिज़ल्ट्स हैं। तो इन तमाम पॉइंट्स के हवाले से एक टीचर को नॉलेज होना चाहिए प्रॉपर और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ताकि वो प्रॉपर तरीके से इस टेस्टिंग सर्विस को यूज़ कर सके। तो इसमें हम देख लेते हैं कि कौन से टेस्ट शामिल होते हैं। यहाँ पे चंद टेस्ट की बात की जा रही है, एंड देयर आर नंबर ऑफ टेस्ट दैट अ टीचर कैन अप्लाई एंड यूज़। इसमें एडमिशन टेस्ट आ जाते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट आ जाते हैं, और एप्टीट्यूड टेस्ट है, इंटरेस्ट टेस्ट है, और पर्सनैलिटी टेस्ट है। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे टेस्ट हैं जो एक टीचर स्टूडेंट्स से टेस्ट ले सकता है और उनकी जो कंसर्न्स हैं, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी जो एबिलिटीज़ हैं, और उनके हवाले से प्रॉपर तौर पर अंडरस्टैंडिंग हासिल कर सकता है। लेकिन ये देखना होगा कि किस सिचुएशन में कौन सा टेस्ट बेहतर होगा और कौन सा टेस्ट ज़रूरी होगा ताकि उस प्रॉपर कंसर्न्स और उस प्रॉपर नॉलेज को हासिल किया जा सके जो एक टीचर को चाहिए या एक काउंसलर को चाहिए अपने क्लाइंट के हवाले से। तो वो अपने क्लाइंट के हवाले से जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो गोल्स हैं जो उसने सेट किए हुए हैं, तो उनको सामने रखते हुए वो टेस्ट को सिलेक्ट करता है कि किस तरह का टेस्ट उसने सिलेक्ट करना है ताकि प्रॉपर रिजल्ट्स हासिल किए जा सकें। सो टेस्टिंग सर्विस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी नेसेसरी फॉर टीचर्स एंड काउंसलर्स। So counselors use tests generally for assessment, placement and guidance, as well as to assist clients to increase their self-knowledge, practice decision making and acquire new behaviors. जो काउंसलर होता है वो टेस्ट को यूज़ करता है जनरली असेसमेंट पर्पज़ के लिए, प्लेसमेंट पर्पज़ के लिए, और अपने स्टूडेंट्स या क्लाइंट्स को गाइडेंस प्रोवाइड करने के हवाले से। वो असिस्ट करना चाहता है अपने क्लाइंट्स को ताकि उनका क्लाइंट्स का, स्टूडेंट्स का सेल्फ नॉलेज जो है वो इंक्रीज़ किया जा सके, उसको बढ़ाया जा सके, और बेटर डिसीजन मेकिंग कैसे पॉसिबल होगी, उनमें बिहेवियर प्रॉब्लम्स जो है उनको कैसे बेहतर किया जा सकता है। तो इस हवाले से काउंसलर टेस्टिंग सर्विस का यूज़ कर सकता है। सो देयर आर सम स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन टेस्टिंग प्रोसेस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। नंबर 1, सिलेक्टिंग द टेस्ट, देन कम्स एडमिनिस्ट्रिंग द टेस्ट, after that scoring the test, interpreting the results and finally communicating the results. सबसे पहले क्या करना होगा कि आपने टेस्ट को सिलेक्ट करना है। एज ए काउंसलर, एज ए टीचर, यू हैव टू सिलेक्ट द प्रॉपर टेस्ट अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जेक्टिव्स। आप क्या मालूम करना चाह रहे हैं, आपको किस तरह का नॉलेज चाहिए, आप एक्चुअली स्टूडेंट के बारे में क्या जानना चाहते हैं। So keeping in view the goals and objectives, you have to select the proper test and appropriate test so that the required results can be obtained. इसके बाद नंबर नेक्स्ट जो है वो है एडमिनिस्ट्रिंग द टेस्ट। जब आपने टेस्ट को सिलेक्ट कर लिया तो अगला स्टेप होगा कि उस टेस्ट को कैसे एडमिनिस्टर करना है, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, किस तरह की प्लानिंग होनी चाहिए आपकी, और कौन सी वो सर्कमस्टांसेस है, किस एनवायरनमेंट में आप उस टेस्ट को एडमिनिस्टर करेंगे। इस हवाले से आपकी मुकम्मल प्लानिंग जो है वो ज़रूरी है। देन कम स्कोरिंग द टेस्ट। जब आपने टेस्ट एडमिनिस्टर कर लिया तो अगला मरहला आता है कि उस टेस्ट को स्कोर कैसे करें। तो स्कोरिंग के हवाले से क्या पॉलिसी और क्या प्रोसीजर आप अडॉप्ट करेंगे, इसमें ये डिटेल से आप देखते हैं। देन कम्स इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स। रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करना है। टेस्ट की स्कोरिंग कर ली, आपके पास रिजल्ट्स आ गए,
अब उन रिजल्ट्स को इंटरप्रेट कैसे करना है, इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे। नेक्स्ट है कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स। अब आपने टेस्ट को सिलेक्ट भी कर लिया, आपने एडमिनिस्टर कर लिया, आपने उसको स्कोर कर लिया, आपने रिजल्ट्स को इंटरप्रेट भी कर लिया। नाउ कम्स हाउ टू कम्युनिकेट द रिजल्ट्स टू स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स एंड अदर इंस्टीट्यूशंस वेयर इट इज़ नीडेड। तो जहाँ जहाँ ज़रूरी है आपने उन रिज़ल्ट्स को कैसे वहाँ पहुँचाना है, किस तरह से कम्युनिकेट करना है उन रिज़ल्ट्स को। तो इस हवाले से टेस्टिंग सर्विस में कम्युनिकेशन ऑफ रिज़ल्ट्स भी बहुत ज़रूरी है। अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन होगी तो आप रिज़ल्ट्स को बेहतरीन तरीके से शेयर कर पाएंगे। सो हियर कम्स सिलेक्टिंग। Having defined the purpose of testing, the counselor looks to a variety of sources for information on available tests. जब आपने टेस्ट का पर्पस डिफाइन कर लिया तो उसके बाद आपने डिफरेंट जो अवेलेबल टेस्ट्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करनी है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन आप हासिल कर रहे हैं ये किन सोर्सेज से आपके पास आएगी, कहाँ कहाँ से आप हासिल कर सकते हैं ये इन्फॉर्मेशन, कौन से रिसोर्सेज हैं। तो इसमें बुक्स आ जाती हैं, इसमें जर्नल्स हैं, डिफरेंट जर्नल्स को आप देख सकते हैं, टेस्ट मैनुअल्स हैं, हर टेस्ट का अपना जो प्रॉपर मैनुअल होता है उससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। देयर आर टेक्स्ट बुक्स ऑन टेस्टिंग एंड मेजरमेंट, आपको डिफरेंट बुक्स मिल जाएंगी जो टेस्टिंग एंड मेजरमेंट के ऊपर हैं। तो इन तमाम रिसोर्सेज को यूज़ करके आप प्रॉपर टेस्ट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ ये डिस्कस करना भी ज़रूरी है कि जितना टेस्ट को बेहतर तौर पर आप समझेंगे और टेस्ट को बेहतर तौर पर सिलेक्ट करेंगे अपने ऑब्जेक्टिव्स और गोल को सामने रखते हुए, उसी तरह से उसकी एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर होगी, स्कोरिंग बेहतर होगी, इंटरप्रिटेशन बेहतर होगी और रिजल्ट्स जो आएंगे उनको प्रॉपर तरीके से अप्रोप्रिएटली आप तमाम स्टेक होल्डर के साथ कम्युनिकेट कर सकेंगे बेहतर तरीके से। और अगर आप टेस्ट ही बेहतर तौर पर सिलेक्ट नहीं करते, आप प्रॉपर टेस्ट सिलेक्शन नहीं करते, आप टेस्ट ही डिफरेंट सेलेक्ट कर लेते हैं जो रिक्वायर्ड ही नहीं था और जो वो मुताबिकत ही नहीं रखता, जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो आप जानना चाह रहे थे उसके साथ मैच नहीं कर पा रहा, तो आपका पूरा प्रोसीजर जो है कम्युनिकेशन तक वो सारा ज़ाया हो सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप टेस्ट को सिलेक्ट करते हुए बेस्ट टेस्ट सिलेक्ट करें जो बहुत ज़रूरी है, जो बहुत अप्रोप्रिएट है और रिक्वायर्ड है। देन कम्स एडमिनिस्ट्रिंग। अब आपने टेस्ट को सिलेक्ट कर लिया तो अगला मरहला जो होगा वो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट टेस्ट। आप किस तरीके से उस टेस्ट को एडमिनिस्टर करेंगे। सो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज यूजुअली स्टैंडर्डाइज्ड बाय द डेवलपर्स ऑफ द टेस्ट। तो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भी एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है और उसमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि आपने किस तरह से एडमिनिस्टर करना है उस टेस्ट को। इसमें आप ये देखते हैं कि आपने उस टेस्ट को किस तरह से एडमिनिस्टर करना है, वो सिचुएशन, वो एनवायरनमेंट और वो रिसोर्सेज तमाम जो चाहिए आपको उसकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ताकि वो प्रॉपर तरीके से एडमिनिस्टर किया जा सके और बाद में आप प्रॉपर अप्रोप्रिएट रिजल्ट्स हासिल कर सकें। सो मैनुअल इंस्ट्रक्शन नीडेड टू बी फॉलोड इन ऑर्डर टू मेक अ वैलिड कंपैरिजन ऑफ एन इंडिविजुअल स्कोर विद द टेस्ट नॉर्म ग्रुप। तो आप मैनुअल इंस्ट्रक्शंस जो हैं, डिफरेंट जो इंस्ट्रक्शंस हैं हर टेस्ट के हवाले से, उनको सामने रखते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के वक्त उसको सामने रखते हुए आप प्रॉपर टेस्ट एडमिनिस्टर करते हैं। तो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन में एक्चुअली आपने उन तमाम इंस्ट्रक्शंस को चेक करना होता है, उनको पढ़ना होता है और उनको जहन में रखना होता है ताकि आप हर टेस्ट के हवाले से जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है और इंस्ट्रक्शंस हैं उनको प्रॉपर तरीके से और बेहतरीन तरीके से आप उसको एडमिनिस्टर कर सकें, अप्लाई कर सकें। और जब तक आपसे टेस्ट प्रॉपर एडमिनिस्टर नहीं हो पाएगा उस वक्त तक आप सही तरह से रिजल्ट्स नहीं ले पाएंगे। सो देन कम स्कोरिंग। स्कोरिंग ऑफ टेस्ट फॉलोज द इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड इन द टेस्ट मैनुअल। जो टेस्ट मैनुअल है उसमें टेस्ट की स्कोरिंग के हवाले से इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर दी जाती हैं। तो आपने वहाँ से जो भी टेस्ट आपने सिलेक्ट करना है उसकी स्कोरिंग के हवाले से इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना होगा ताकि आप प्रॉपर तरीके से स्कोर कर पाएँ। द काउंसलर इज समटाइम्स गिवन द ऑप्शन ऑफ हैविंग द टेस्ट मशीन स्कोर्ड रादर देन हैंड स्कोर्ड। तो दो तरह से होते हैं, एक तो आप खुद उसको चेक कर रहे होते हैं, स्कोर कर रहे होते हैं,
और दूसरा तरीका मशीन स्कोरिंग का है। जैसे हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को ज़्यादातर आजकल मशीन स्कोरिंग से चेक किया जाता है। तो आपने इसको डिसाइड करना है कि विच इज़ द बेस्ट प्रोसीजर एंड बेस्ट मेथड ऑफ स्कोरिंग, कि जो आप टेस्ट ले रहे हैं उसके हवाले से आप ख़ुद उसको स्कोर करेंगे या आप मशीन स्कोरिंग करेंगे, इट डिपेंड्स। सो बोथ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ दिस चॉइस नीड टू बी कंसीडर्ड। तो यहाँ पे ये डिस्कस किया जा रहा है कि आप उसको खुद चेक कर रहे हैं या उसको मशीन स्कोरिंग कर रहे हैं, तो दोनों के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट हो सकते हैं। तो स्कोरिंग करते हुए आपने दोनों साइड्स को देखना है कि पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या हैं और नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं, और कौन सा बेस्ट सूटेबल रहेगा स्कोरिंग प्रोसीजर जो आप अडॉप्ट कर सकते हैं। सो हियर कम्स इंटरप्रेटिंग। डिपेंडिंग अपॉन द काउंसलर्स थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू एंड द एक्सटेंट ऑफ द टेस्ट मैनुअल गाइडलाइंस, interpretation may be brief and superficial or detailed and explicitly theory based। तो यहाँ पे ये डिस्कस किया जा रहा है कि ये डिपेंड करता है कि टेस्ट की मैनुअल गाइडलाइंस के ऊपर आप उसको चेक करके उसको सामने रखते हुए आप उसको इंटरप्रेट करें। और ये जो इंटरप्रिटेशन है जब आप कर रहे होंगे एज ए काउंसलर, एज ए टीचर, तो ये ब्रीफ भी हो सकती है, सुपरफिशियल भी हो सकती है, ये डिटेल्ड भी हो सकती है। तो इट डिपेंड्स। तो आपने इसको जहन में रखना है कि किस तरह से आप उसकी इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, बिकॉज दिस एरिया अलाउज फॉर द ग्रेटेस्ट फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। आप उसको डिटेल में बताना चाह रहे हैं, यू कैन डू इट। आप उसको ब्रीफ इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं, इट्स अप टू यू। तो आपने डिसाइड करना है, आपने फैसला करना है एज ए काउंसलर कि हाउ टू इंटरप्रेट द रिजल्ट्स, किस तरह से आप इंटरप्रेट करेंगे, उसकी इंटरप्रिटेशन किस नेचर की होगी। तो ये आप पे है कि आप बेहतर तौर पर डिसीजन मेकिंग कर सकें कि कैसे उसको इंटरप्रेट किया जाएगा। सो इट इज़ आल्सो द एरिया विद द ग्रेटेस्ट डेंजर ऑफ मिसयूज़। तो जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है, जहाँ पे टोटल आप पे छोड़ा जा रहा है कि आपने इसको डिसाइड करना है कि किस तरह से आप इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे बाज़-औक़ात मिसयूज़ करने का या मिसयूज़ होने का भी डेंजर होता है। यहाँ पे ख़तरा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपकी इस इंटरप्रिटेशन से मिसयूज़ हो जाए, रिज़ल्ट्स वो ना आ पाएँ, आपकी इंटरप्रिटेशन गलत हो जाए या वो बायसनेस उसमें आ जाए, आपकी पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग तो शामिल नहीं हो रही, आप अनबायस्ड थे या बायस्ड थे, आपने कोई साइड तो नहीं ली जो आप इंटरप्रिटेशन कर रहे थे रिज़ल्ट्स की। सो यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट इट। आपको बहुत केयरफुल तरीके से, मोहतात तरीके से और बहुत ही प्रोफेशनलिज्म को सामने रखते हुए आपने टेस्ट को इंटरप्रेट करना होता है। सो देन कम्स कम्युनिकेटिंग। द लास्ट पॉइंट इज़ कि जब आपने टेस्ट ले लिया ऑब्जेक्टिव्स को सामने रखते हुए, उसके बाद आपने एडमिनिस्ट्रेशन कर ली, उसके बाद आपने रिजल्ट्स आए, स्कोरिंग की और इंटरप्रिटेशन की, तो उसके बाद आपने उन रिज़ल्ट्स की इंटरप्रिटेशन के बाद उन रिज़ल्ट्स को, उन नताइज को कम्युनिकेट करना होता है डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ। आपने स्टूडेंट्स को बताना है जिसकी आप काउंसलिंग करने जा रहे हैं, जिसको आपने गाइडेंस प्रोवाइड करनी है, इवन कि उनके पेरेंट्स को आप शेयर कर सकते हैं, आप हेड्स ऑफ द इंस्टीट्यूशंस को कर सकते हैं एंड अदर डिफरेंट इंस्टीट्यूशन वेयर इट इज़ रिक्वायर्ड टू कम्युनिकेट। द काउंसलर यूजेस वर्बल एंड नॉन वर्बल इंटरेक्शन स्किल्स टू कन्वे मैसेजेस टू क्लाइंट्स एंड टू असेस देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। तो इसमें काउंसलर क्या करता है कि वो अपने वर्बल इंटरेक्शन स्किल्स और नॉन वर्बल इंटरेक्शन स्किल्स, उसके ज़रिए मैसेजेस कन्वे करता है अपने क्लाइंट्स को और असेस करता है उनकी अंडरस्टैंडिंग। वो वर्बल इंटरेक्शन स्किल्स भी यूज़ करता है और नॉन वर्बल इंटरेक्शन स्किल्स भी यूज़ करता है ताकि वो रिजल्ट्स को बेहतर तौर पर कम्युनिकेट कर सके। तो इट डिपेंड्स अपॉन द काउंसलर what sort of technique he or she is using. He can use verbal interaction skill also, he can use non-verbal interaction skills, or he or she may use both of them, verbal as well as non-verbal. So it depends totally up to the counselor and teacher to decide. So there are some issues in testing service. Number one, confidentiality. सीगे राज में रखना, छुपा के रखना। आपका क्लाइंट, आपका स्टूडेंट जो टेस्टिंग सर्विस में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, जो मालूमात आप तक शेयर कर रहा है,
ایز اے کاؤنسلر اور ٹیچر اٹس یور ڈیوٹی کہ اس تمام معلومات کو, اس تمام انفارمیشن کو وچ از پرووائڈیڈ بائی دا کلائنٹ اینڈ اسٹوڈنٹ, آپ نے اس کو کانفیڈینشیل رکھنا ہے. آپ نے اس کو اس کی اجازت کے بغیر ڈسکلوز نہیں کرنا. تو یہ بہت ضروری ہے کانفیڈینشیلٹی. نو انفارمیشن کین بی شیئرڈ آؤٹ سائڈ دا ریلیشنشپ وداؤٹ دا فل کانسنٹ آف دا کلائنٹ. جب تک کلائنٹ کی مرضی شامل نہ ہو, جب تک اس کی اجازت آپ حاصل نہیں کریں گے, جب تک اس کی کانسنٹ نہیں لیں گے آپ, تب تک آپ وہ انفارمیشن شیئر نہیں کر سکتے کسی اور کے ساتھ. سو کانفیڈینشیلٹی از ویری مچ نیڈیڈ. So information is provided to someone outside the relationship only after the specifies to be used from the testing are fully disclosed to the client. اور اگر آپ نے کہیں شیئر کرنا ہے کوئی پوائنٹ, کوئی انفارمیشن, تو سب سے پہلے آپ نے اپنے کلائنٹ سے انفارمیشن شیئر کرنی ہے, اس کی کانسنٹ لینی ہے. اگر وہ ایگری ہے, اگر وہ رضامند ہے اس کے اوپر, اگر وہ آپ کو اجازت دے رہا ہے, then you have to share it. Otherwise, you are not allowed to disclose or share his information to anyone. So these specifies include the when, what and to whom of the disclosure. تو جہاں آپ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں, جہاں ضروری ہے اس کو شیئر کرنا, تو آپ پہلے اپنے کلائنٹ کی اجازت لیں گے, اس کو انفارم کریں گے کہ کس کو آپ شیئر کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں, مقصد کیا ہے شیئر کرنے کا, اور اس کی پراپر کانسنٹ لینے کے بعد آپ شیئر کر پائیں گے. دا پرپز آف ڈسکلوجر از آلسو شیئرڈ ود دا کلائنٹ اینڈ وٹ دا انفارمیشن ول بی یوزڈ فار از کلیئرلی اسپیلڈ آؤٹ. ایچ اینڈ ایوری تھنگ یو ہیو ٹو شیئر ود یور کلائنٹ اینڈ یو ہیو ٹو گیٹ پرمیشن. ادروائز یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو ڈسکلوز اینی انفارمیشن ریویلڈ اینڈ ڈسکسڈ اینڈ پرووائڈیڈ بائی یور اسٹوڈنٹ ٹو یو. So there are some skills and competencies as a counselor you have while providing testing service. What are those? Now we are discussing about it. Understand clearly the intended purpose of test. As a counselor, آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ جو ٹیسٹ سلیکٹ کر رہے ہیں اس کا پرپز کیا ہے. اس کے حوالے سے آپ کو کمپلیٹ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے اور کمپلیٹ انفارمیشن ہونی چاہیے. So number next is be aware of the client's needs regarding the test to be given. آپ جو ٹیسٹ لے رہے ہیں اپنے کلائنٹس کی نیڈز کا خیال رکھنا چاہیے کہ کیا اس کی جو ضرورت ہے اس کے مطابق آپ ٹیسٹ لے رہے ہیں, یا آپ جو ٹیسٹ لے رہے ہیں وہ ان آبجیکٹیوز اور گولز کو فلفل کر رہا ہے جو آپ نے سیٹ کیے ہوئے تھے. تو اس حوالے سے آپ نے کیئرفل رہنا, اویئر ہونا چاہیے. Have knowledge about the test, its validity, reliability and the norm group for which it was developed. تو یہاں پہ یہ ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ جو بھی ٹیسٹ آپ سلیکٹ کریں گے تو اس کے حوالے سے پراپر نالج تو آپ کو ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور پوائنٹس ہیں جو بہت ضروری ہیں کہ ان کا بھی علم ہونا ایک کاؤنسلر کو اور ایک ٹیچر کو ضروری ہے. جو بھی ٹیسٹ آپ سلیکٹ کر رہے ہیں وہ ویلڈ ٹیسٹ ہے یا نہیں ہے, اس کی ریلائبلٹی کس لیول کی ہے, وہ ریلائبل ٹیسٹ ہے یا نہیں ہے. تو اس حوالے سے بھی آپ نے جائزہ لینا ہوگا اور اس پوائنٹ کو بھی ذہن میں رکھنا ہوگا. سو ہیو بین سپروائزڈ ان ایڈمنسٹرنگ, اسکورنگ, انٹرپریٹنگ اینڈ کمیونیکیٹنگ ریزلٹس آف دا ٹیسٹ ٹو بی گیون. تو آپ نے تمام پروسیجر جو ایڈمنسٹریشن کا ہے, جو اسکورنگ کا ہے, انٹرپریٹیشن کا ہے, کمیونیکیٹنگ کا ہے ریزلٹس کا, آل دا پروسیجر, ایچ اینڈ ایوری تھنگ, ہر ایک چیز کا خیال رکھنا ہے اور آپ کو پراپر انڈرسٹینڈنگ ہوگی تو تبھی آپ صحیح طرح سے ٹیسٹنگ سروس پرووائڈ کر سکیں گے.